Hello friends, today we will find equivalent resistance of these two circuits using symmetry rules. So first we have to know about the symmetry rules. First symmetry rule is mirror symmetry and second one is folding symmetry. So let's see about the symmetry rules first. आपका जो applied voltage के points हैं that is AB nodes जहां पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर उसके परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्ट रिप्लिका होते हैं देन इट इज मिरर सिमेट्री. तो मिरर सिमेट्री में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज के पॉइंट्स कहाँ है? ए बी, और हम उसके परपेंडिकुलर में एक प्लेन ड्रॉ करते हैं एंड दिस पोर्शन इज एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ द राइट हैंड साइड पोर्शन. तो ये है मिरर सिमेट्री. इसमें करंट सेम होती है ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. सपोज दिस इज द करंट दैट इज ड्यू टू द अप्लाइड बैटरी and it is I, so emerging current will be same as I. Okay, suppose it is applied it is connected with positive terminal and this is with the negative terminal. So I current will emerge from this negative terminal. So suppose I1 is current flowing through this R resistance and I2 is current flowing through this 2R resistance. So the same current will come out from these two branches, that is I1 and I2, because unka sum will be I as we have seen here. तो यहाँ पे जो currents होती हैं that is same at the left hand side and the right hand side. Now we come to next symmetry rule, that is folding symmetry. In folding symmetry, the plane of symmetry is drawn across the line of अप्लाइड वोल्टेज. ये जो ए बी पॉइंट्स हैं जहां पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, जहां हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसी लाइन में आपका सिमेट्री प्लेन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और इसके जो अपर साइड में जो रेजिस्टेंसेस है दोज आर कॉपी ऑफ द डाउन साइड रेजिस्टेंसेस. यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर होगा, 2R है, 2R है. तो आपको अगर इस तरीके का रिप्लिका दिख रहा है अपर एंड बॉटम साइड में, तो यू कैन ड्रॉ द फोल्डिंग सिमेट्री लाइन हियर एंड अप्लाई द रूल्स ऑफ दैट. तो फोल्डिंग सिमेट्री में आपका क्या होता है? वोल्टेजेस एट द बोथ साइड्स ऑफ द अपोजिट साइड रिमेन सेम. अगर यहाँ पे आपका V वोल्टेज है देन सेम वोल्टेज विल बी हियर. ओके, तो फोल्डिंग सिमेट्री में ये मेंटेन करता है कॉमन वोल्टेज एट द अपर साइड एंड बॉटम साइड. Now we come to the circuit. In this circuit, we can see that no folding symmetry is existing here. So we can apply mirror symmetry by drawing a plane of symmetry perpendicular to the line of applied voltage. Okay, so these are the points where we have applied voltage or we have to find the equivalent resistance. उसके perpendicular एक line draw कर रही, that is the plane of symmetry. Okay, this is plane of mirror symmetry, which is perpendicular to line AB. Now this left hand portion is exact replica of the right hand portion of this line. Okay, so we can assume the equal currents on both sides. Okay, circuit, as we can see that the symmetry exists across this line that is perpendicular to the line of applied voltage. So this is nothing but the mirror symmetry, that is line of symmetry is perpendicular to the applied voltage. Okay, so this is the line of symmetry. Left hand portion of this line is exact replica of the right hand side portion. As we know that in mirror symmetry, currents on the left hand side are exactly same as right hand side. So suppose this current is
these two currents are equal and they are I1. So here again I1 current will emerge. Okay, because they are the exact replica. अगर आप यहाँ पे भी वोल्टेज की बैटरी चेंज कर देते हैं, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव कर देंगे, देन सेम I1 विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, पाथ सेम मिलेगा, सेम करंट फ्लो होगी. सो दिस इज I1. यहाँ पे करंट थ्री पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, दिस I1 करंट, and suppose it is IA, IB and IC. Similar will happen here. यहाँ पे IA इमर्ज होगी, यहाँ पे IB आएगी और यहाँ पे IC. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो होंगी सेम at left hand side and right hand side. Now we can say that this current IC, it is coming here and same current is flowing here and the upward direction. That means there is no role of this node. जब इस नोड का कोई रोल नहीं है, ये नोड इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा है, कुछ यहाँ से इसमें ट्रांसफर नहीं कर रहा अदर ब्रांचेस में, so we can separate this node. Okay, understand? This IC current is coming in this branch and the same and the whole current is flowing through the this branch in the upper side direction. So we can separate it because इसमें कुछ ऐड भी नहीं हो रहा है और इससे कहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो रहा है. सो वी कैन मेक दिस नोड सेपरेट. तो इस नोड को जब आप सेपरेट कर लेंगे देन वी कैन सी कि ये आपका सर्किट कैसा हो जाएगा. ये दोनों आपके रेजिस्टेंस सीरीज में, दैट इज 2R, it is in parallel with R, it is again parallel with this 2R. Okay, so that will help us. यहाँ पे क्या हो गया, R plus R, that is 2R. हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा. Now it is like this. ये आपका, और यहाँ पे सर्किट्स के जो 3 पार्ट्स हैं, one of them is R, उसको as it is ड्रॉ कर देते हैं. This is R. अपर साइड में जो है आपकी ब्रांच, that is R plus 2R and it is nothing but 2R. ये है आपका 2R, ये 2R है, ये R है, और जो डाउनवर्ड ये वाली ब्रांच है that is again 2R. ये दोनों सीरीज में है, so it is again 2R. Okay, so these three resistances, 3 branches come in parallel to each other, और उसके साथ अब हम इसको नीचे वाली ब्रांच जो है दैट इज 2R हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे. एंड दिस R is again here at this node B and this is A. Okay, this is R, this is R and this is 2R. Now take the parallel combination rule, apply the rule of parallel. 2R in parallel to 2R in parallel to R. This 2R and 2R in parallel, so this will become R. Though 2R और 2R जब parallel में होते हैं तो they become just half of it. R and R again they are in parallel, so its parallel will be half of it, that is R by 2. कैसे करते हैं, R into R divided by sum of this, that is 2R. तो हम देखते हैं उसका हाफ हो जाता है. ठीक है, दो रेजिस्टेंस जब इक्वल पैरेलल में होते हैं तो यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट है दैट इज नथिंग बट R by 2, और इनको हम हटा देते हैं. ठीक है, इन तीनों का इक्विवेलेंट है दैट इज R by 2. Now we can see that these 3 resistances are in series, that is R plus R by 2 plus R, and they are in parallel with this 2R. Okay, and this is RAB, equivalent resistance of this network. So this R plus R, that is 2R, plus R by 2, that is 5R by 2. 5R by 2 in parallel with 2R. तो कैसे निकालेंगे हम, 5R by 2 multiplied by 2R, and in denominator there will come the sum of this, that is 9R by 2. Okay, here will come 9R by 2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, so the answer is 10R by 9. This is the equivalent resistance of such type of
network, that is 10R by 9. Now we will solve this network using the symmetric rule. We can see that if we will draw the line of symmetry along the applied voltage, then folding symmetry. Okay, so everything is symmetrical on the upper, on the bottom of this line. ये हमारी folding symmetry plane है, and upper side is symmetrical to lower side. We can see, so we can apply folding symmetry rule. अगर आप इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, then it is, if the line of symmetry is perpendicular to applied voltage, then it is mirror symmetry. I am using here folding because हमने यहाँ पे अभी लास्ट एग्जाम्पल में मिरर सिमेट्री देखा था. ठीक है, तो फोल्डिंग सिमेट्री के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी अलोंग द अप्लाइड वोल्टेज पॉइंट्स. ए बी के लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे. इस लाइन को अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दिस विल बी ड्रॉन व्हेन वी विल अप्लाई मिरर सिमेट्री. तो जब फोल्डिंग सिमेट्री ड्रॉ की आपने, तो मैंने आपको बोला था कि उनके वोल्टेजेस एट डिफरेंट नोड्स, अपोजिट नोड्स पे सेम होंगे. तो ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सपोज इस पे जो वोल्टेज है इट इज V1 एंड सेम वोल्टेज विल बी हियर V1. ओके, क्योंकि यहां से आपने बैटरी, आपका प्लस यहाँ बैटरी का अप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा दैट इज V1 एंड सेम ड्रॉप विल बी हियर V1, क्योंकि सेम करंट्स फ्लो करेंगी. R और R दोनों जगह उसको इक्वल रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर इक्वल करंट्स फ्लो होंगी. ठीक, यहाँ पे आपका सेम करंट्स आउट गोइंग में भी अपेयर होंगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेम ड्रॉप विल बी हियर. ओके, सो we can write this drop same, and suppose it is V2, and this V2 or changes because of other resistances are present in the intermediate portion. तो यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे भी हम इसको कॉमन कहेंगे. सम वोल्टेज, सपोज इट इज V. इस फोल्डिंग सिमेट्री में इस नोड पे जो वोल्टेज है, द सेम वोल्टेज इज हियर एट द अपोजिट साइड, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस. हमें पता है कि करंट कब फ्लो होता है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ. जब दोनों पॉइंट्स पे वोल्टेज सेम है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता. तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. सिमिलर विल हैपन विद दिस रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है. सो वी कैन रिमूव दीज टू रेजिस्टेंसेस because no current will flow through this because of the equal voltages across the terminal. अपर साइड में जितने भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, सेम रेजिस्टेंसेस आपके इस लाइन के नीचे भी प्रेजेंट हैं, दिस लाइन ऑफ सिमेट्री के नीचे. तो एवरी रेजिस्टेंस विल बिकम द हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, बिकॉज ये जो आपके जो दो पॉइंट्स पे जो रेजिस्टेंस है, सेम उन्हीं पॉइंट्स पे एक और रेजिस्टेंस नीचे प्रेजेंट है. ये V1 V2 नोड्स पे एक रेजिस्टेंस है, V1 V2 नोड्स पे एक और रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. तो ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, और जब दो रेजिस्टेंस का पैरेलल होता है तो वो हाफ वैल्यू हो जाती है. तो हम देखेंगे ये सब कैसा हो जाएगा. जैसे A और V1 जो नोड्स है उनके बीच में कितने रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है, 2 रेजिस्टेंसेस, एंड बोथ आर इन पैरेलल. ठीक, एक ये और एक ये. ऐसे V1 V2 के बीच में एक ये और एक ये. तो एवरी रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ ऑफ इट्स वैल्यू. तो ये R/2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस. इसको हम मिटा देंगे, ये R/2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस. ठीक, तो हमने इसको भी हटा दिया. ये रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा बिकॉज V और V2 के बीच में यहाँ पे R है, यहाँ पे भी एक R प्रेजेंट है पैरेलल में. सो दिस विल बिकम R/2. रिमूव दिस रेजिस्टेंस, ये R/2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस. सो हमारा जो सर्किट है ये R इसको R/2 हाफ कर देगा इस सर्किट में. These two resistances, these are in series. इनको जब हम मर्ज करेंगे they will become single resistance R. Okay, this is R.
तो हम देखेंगे R and R/2 in parallel, तो ये कितना हो जाएगा R and R/2 in parallel, that is R and by 3 रेजिस्टेंस. ओके, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो गया R/3, और ये किसके पैरेलल में है R/3 सीरीज में है R/2, और ये सेकेंड R/2 इनके पैरेलल में है, एंड दिस इज R इक्विवेलेंट और RAB. ओके, समझ गए. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल, ये दोनों रिड्यूस होके जब हम पैरेलल का रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे R/3. ओके, और फिर ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है अक्रॉस AB, और हम जब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R/3 प्लस R, दैट इज 4R/3. So using the symmetry rules we can easily solve such complex circuits